देख रहे हैं डीडी कशिर एहसास कश्मीर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very warm welcome to all of you, my dear students. Today we are going to discuss functional groups. My dear students, अगर हम एक इंसान की बात करें तो हर एक के पास दो हाथ होते हैं, लेकिन जब एक टीचर अपना काम करता है तो या वो अपना काम एक चाक से करता है या वो अपना काम पेन से करता है या वो अपना काम मार्कर से करता है। इसलिए एक टीचर जब फंक्शन करता है तो फंक्शन के लिए चाक ज़रूरी है, मार्कर ज़रूरी है, पेन ज़रूरी है। एक डॉक्टर के पास भी दो हाथ होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर अपना काम स्टेथोस्कोप से करता है या वो पल्स हाथ से भी चेक कर सकता है, उसके पास बीपी अपैरेटस होता है। इसी तरह हर एक इंसान के पास काम करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जो हमारे कंपाउंड्स हैं, इनमें भी कुछ एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं which decide the properties and reactivity of a molecule. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। आज हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए फंक्शनल ग्रुप? आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड an atom or group of atoms which determines the properties and reactivity of a molecule in a compound is called a functional group. एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स which decide the chemical properties, which decide the physical properties, which decides the behavior of a molecule is called a functional group. फंक्शनल ग्रुप में कभी कभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। तो हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे। Let us start our functional groups. Functional group समझने के लिए we must have an idea about the valency of an element. In the last lecture we have defined organic compounds or the compounds which are either hydrocarbons or their derivatives. तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, इसमें अल्केन्स, अल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। तो इसमें नंबर 2 अल्कीन्स होते हैं,
Alkenes contain at least one double bond, carbon-carbon double bond. अल्केन्स और अल्कीन्स में डिफरेंस क्या है? अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अल्कीन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम अल्केन्स. फॉर एग्जाम्पल, वी से अल्कीन्स आर unsaturated which can undergo addition reactions. तो अल्केन्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है. अल्केन्स में सबस्टिट्यूशन होती है, अल्कीन्स में एडिशन भी होता है, दे टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शंस. तो इस डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम अल्केन्स. सो वी मे से दैट दिस डबल बॉन्ड इज आल्सो ए फंक्शनल ग्रुप. Number third, we have alkynes. In alkynes, we have carbon-carbon triple bond. This is our first alkyne, ethine or acetylene. This acetylene is acidic in nature. Hence, its properties are different from alkenes. The properties are different because of the presence of triple bond. So, we may say that triple bond is also a functional group. Consider this molecule. It is a methane, simplest hydrocarbon, simplest alkane. We know valency of hydrogen is 1. Valency of halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Valence of halogens is also 1. If one or more hydrogen atoms in methane in an alkane are replaced by halogens, suppose let me replace hydrogen by chlorine. Now this molecule, this compound is chloromethane. ये हमारा क्लोरोमीथेन है. In common system, it is named as methyl chloride. The general name of this group is haloalkane or haloalkanes. Haloalkanes mean one or more hydrogen atoms in an alkane are replaced by one or more halogen atoms. Halo means halogen atom is substituted in alkanes. The properties of methane are totally different from chloromethane.
this chlorine atom, this halogen atom will decide the properties of chloromethane, haloalkane. Hence, haloalkane is a functional group in which halogen decides the properties of the compound. So, our first functional group after alkenes and alkynes will be haloalkane, in which we have halogen atoms. We know valency of oxygen is 2. If one of the hydrogen atoms in water is removed, we have OH group. This OH group is called a hydroxyl group. In this group, valency of oxygen is 1 because it has only one hydrogen atom bonded to it. Now, if one hydrogen atom or more hydrogen atoms are replaced by OH group, hydroxyl group, this is our functional group, which we generally call alcohol. ये हमारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम अल्कोहल्स कहते हैं. अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, हेलोअल्केन्स में हेलोजन एटम होता है. अब अल्कोहल्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर में अल्केनॉल्स कहते हैं. आज हम जस्ट फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे. अल्केनॉल्स, ये मीथेन था पहले, जब इसमें हमने OH ग्रुप लगाया तो अल्केनॉल मीन्स मीथेनॉल, तो IUPAC सिस्टम में फिर इसको मीथेनॉल पढ़ेंगे. ये हमारा मीथेनॉल है. तो कॉमन सिस्टम में इसको हम मिथाइल अल्कोहल पढ़ेंगे. मिथाइल अल्कोहल. देखो बेटा, हमने पढ़ा है ये जो अल्केन्स हैं इनकी जनरल फार्मूला CnH2n+2 है. हमारा फर्स्ट अल्केन मिथेन है. अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन, सपोज मेरे पास ये मीथेन है CH4, अगर मैं एक हाइड्रोजन कम करूं तो मेरे पास अब
कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन हैं। ये एक ग्रुप है, या सिंपली हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास CH4 है, इफ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन इट इज CH3। अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, जो ग्रुप रहता है दैट इज कॉल्ड अल्काइल। मीथेन से एक हाइड्रोजन कम करके हमारे पास ये CH3 जो रहता है, इसको हम मिथाइल। इसी तरह ईथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, इथाइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, प्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपेन से करेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हो। थर्ड नंबर पर मैं यहां पर ईथर लिखूंगा, ईथर्स, जिनको आयुपेशी में अल्कोक्सी अल्केन्स कहते हैं। और बेटा ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, इट इज डिजिग्नेटेड बाय आर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। अल्काइल ग्रुप के बदले हम आर लिखते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। अब मैं यहां पर अगर मैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी ये जो लेफ्ट साइड में CH3 है ये मिथाइल ग्रुप है, और राइट साइड में और एक मिथाइल ग्रुप डालूं, ऑक्सीजन के राइट साइड में भी कार्बन है, राइट साइड में अल्काइल ग्रुप है, लेफ्ट साइड में भी अल्काइल ग्रुप है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, जिसको हम ईथर कहते हैं। अगर इसका आयुपेशी नेमिंग, हम इसका नाम बताएंगे आयुपेशी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप है। आयुपेशी में इनको अल्कोक्सी अल्केन्स, तो यहां पर ये वाला या ये वाला दोनों सेम है, ये सिमेट्रिक ईथर है, तो यहां हम ये भी मिथाइल ग्रुप है, वो भी मिथाइल ग्रुप है। अल्कोक्सी मीन्स मिथॉक्सी, अल्कोक्सी मीन्स मिथॉक्सी, मिथेन इसका नाम होगा। तो आगे हम नॉमेनक्लेचर में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। याद रखने के लिए बेटा मैं एक सिंपल हिंट बोलूंगा। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को याद करो, बीच में ऑक्सीजन, खरगोश का सर और ये 2 कान। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये रैबिट का सर,
इसके 2 कान। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस किया है, वो कर चुके हैं। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है। अगर इस हाइड्रोजन को हम और से रिप्लेस करेंगे, यानी इसको सिंपली हम HOH लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और से बाय और आई मीन बाय एन अल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है, जो मॉलिक्यूल बन जाता है, वो ROH है। वाटर को याद करो HOH। एक हाइड्रोजन निकालो, इसको रिप्लेस करो R से, अल्काइल ग्रुप से, ROH। ROH मीन्स अगर ये हमारा वाटर है तो ROH मीन्स अल्कोहल है। अल्कोहल, IPC में इसको अल्केनॉल पढ़ेंगे, वो नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे। अगर इस R को भी हम इस H को भी हम R से रिप्लेस करेंगे, इसको भी रिप्लेस करेंगे, the new class of compounds is called ethers। ये हमारा ईथर है, ईथर फंक्शन ग्रुप। अल्कोक्सी अल्केन्स IPC में इनको बोलते हैं, याद रखो बेटा। अब इसको HOH को सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। HOH वाटर, ROH अल्कोहल, ROR ईथर। बस इस तरीके से आप एक सिंपल ट्रिक है, अल्कोहल, वाटर और ईथर ये एक जैसे हैं, तीनों में ऑक्सीजन कॉमन है, दोनों साइड में हाइड्रोजन हो तो वाटर, एक साइड में अल्काइल ग्रुप हो और तो अल्कोहल, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप्स हो तो ईथर। इसी तरह अगर हम और मीन्स अल्काइल ग्रुप, इसके साथ X लिखेंगे, X मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये अल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन है, दिस इज हेलो अल्केन। अब आगे बढ़ेंगे। Our next functional group is amine। बेटा बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं। यह हमारा नाइट्रोजन है, इट्स वैलेंसी इज 3, it forms 3 single covalent bonds with hydrogen, it has a lone pair, nitrogen has a lone pair, this is our ammonia। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाएं तो ये जो ग्रुप बनता है N के साथ 2 हाइड्रोजन NH2, ये अमोनिया है, और ये हमारा अमाइन ग्रुप है, इसको अमीन भी पढ़ते हैं। अब यहां पर मैं और लिखूं, और मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, या सिंपलिसिटी के लिए मैं मिथाइल ग्रुप ही लिखूंगा। यह हमारा कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में, एक हाइड्रोजन को हटाओ, रिप्लेस इट विद NH2 ग्रुप। मैंने स्टार्ट में बोला
वैलेंसी का ख्याल रखना है। अगर अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी 3 है, इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अमोनिया में वैलेंसी बराबर है, इट इज सेटिस्फाइड। लेकिन अमाइन ग्रुप में एक हाइड्रोजन हमने हटाया, अब अमाइन ग्रुप की वैलेंसी 1 है। यहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया, यानी हाइड्रोजन और अमाइन की वैलेंसी सेम है, इसलिए हम NH2 ग्रुप को यहां अटैच कर सकते हैं। पहले ये मीथेन था, अब ये मीथेन अमाइन बन गया। इसको हम शॉर्ट में और मीन्स अल्काइल ग्रुप NH2 लिख सकते हैं। अमाइन में NH2 होता है, याद रखने के लिए मैंने इसको अमोनिया से निकाला। अमाइन के बाद हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, उसका नाइट्राइल, या साइनाइड, नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, कार्बन कैन फॉर्म ए ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। अब कार्बन की एक वैलेंसी अभी बाकी है। अगर हम यहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे, अब वैलेंसी को देखो बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाएगा और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। नाइट्राइल IUPAC के हिसाब से, साइनाइड कॉमन सिस्टम के हिसाब से। अगर यहां इस कार्बन के साथ हम एक अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे, सपोज इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच करेंगे, इसको शॉर्ट में हम CH3CN भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इसमें मिथाइल ग्रुप है, तो इसको IUPAC में मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल कहते हैं। अब ये जो साइनाइड ग्रुप होता है, इसकी पहचान क्या है? इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N, CN होता है, या शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं RCN, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, CN मीन्स साइनाइड ग्रुप या साइनाइड आयन। कॉमन सिस्टम में इसको मिथाइल साइनाइड कह सकते हैं। नॉमेनक्लेचर आगे करेंगे, पहले आप फंक्शनल ग्रुप्स को याद करो। अब ये साइनाइड जो था, जैसे मैंने पहले बनाया था, यहां हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो आप देखते हो कि इसमें एक वैलेंसी क्रिएट होती है। मीथेन से हाइड्रोजन हटाओ तो ये वहां पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है।
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है एल्डिहाइड। और यहां पर मैं एल्डिहाइड के साथ और एक ग्रुप लिखूंगा कीटोन, और इसके साथ और एक ग्रुप भी लिखूंगा कार्बोक्साइल ग्रुप। तो कंपाउंड उसका नाम है कार्बोक्साइलिक एसिड्स। अब ये तीन फंक्शनल ग्रुप्स मैंने एक जगह पर एक साथ क्यों लिखे? जैसे मैंने आपको याद रखने के लिए बोला, आप वाटर मॉलिक्यूल को याद रखो। अगर वाटर मॉलिक्यूल में जो बीच वाला ऑक्सीजन है, इसके साथ दोनों साइड में हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल में दो साइड में हाइड्रोजन होता है। अगर एक साइड में अल्काइल ग्रुप आएगा तो अल्कोहल बन जाता है। अगर दोनों साइड में दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो ईथर होगा। याद रखने के लिए इजी है। इसी तरह अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इनमें कॉमन क्या होता है? इनमें कॉमन होता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इट वुड बी ए डबल बॉन्ड जनरली, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब ये जो दो बॉन्ड बनाएगा, ये दो बॉन्ड किसी भी मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप के साथ बना सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। एल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है। यह कॉमन है। जिस तरह वाटर, अल्कोहल, ईथर में ऑक्सीजन कॉमन है, इसी तरह यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है। बेटा ये जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सिमिलर। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल प्रॉपर्टीज। इसलिए इन दो में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप होता है, इसको कार्बोनिल या कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, लेकिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसलिए हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप होता है, इसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं। बेटा अब मैंने कहा कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। इनके अलावा जब हम एसिड्स के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उनमें भी सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप होता है। लेकिन पहले हम याद करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फर्क है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन या कार्बोनिल कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन है, इफ सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन, कार्बोनिल कार्बन is bonded with at least one hydrogen. By at least I mean it can have two also. अगर एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड इसको आईयूपीएसी में हम अल्केनल्स कहते हैं। सपोज अगर मैं यहां पर भी हाइड्रोजन डालता हूं, ये 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो इसको आईयूपीएसी में हम मेथेनल या मीथेनल। अल्कोहल में नॉल, इसमें नल।
तो इसको कॉमन सिस्टम में हम फॉर्मल्डिहाइड, नॉमेनक्लेचर अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, अल्डिहाइड की पहचान है सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, 2 भी हो सकते हैं, एक जरूरी। हाँ, अब कीटोन की बारी है। अगर कीटोन की बात करेंगे, कीटोन की पहचान है कि इस सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के साथ इस साइड में भी कार्बन, इस साइड में भी कार्बन, या इस साइड में भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड में भी अल्काइल ग्रुप, यह और किसी एलिमेंट की सिंबल नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल। अगर सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के साथ इस साइड में भी कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी पहचान है कि यह हमारा कीटोन है। सपोज अगर यहां पर हम अल्काइल ग्रुप मिथाइल डालेंगे CH3, और यहां भी CH3, आप याद रखो बेटा, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन एक जरूरी है, कीटोन में 2 कार्बन जरूरी है या 2 अल्काइल ग्रुप जरूरी है। तो ये जो सिंपलेस्ट कीटोन है जिसमें 3 कार्बन है, इसको हम प्रोपेनोन कहते हैं। कॉमन सिस्टम में इसको हम एसीटोन कहते हैं। हाँ बेटा, अब रही बात कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनमें भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक OH ग्रुप भी होता है। यहां ये जो खाली जगह है, यहां पर हम हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। ये पहचान है OH ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ। एल्डिहाइड्स में 1 हाइड्रोजन, कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप। हाँ बेटा, अगर यहां पर ये जो कार्बन है, इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप भी है, OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी है जो अल्कोहल में था, 2 ग्रुप्स हैं। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपलेस्ट एंड फर्स्ट, जिसमें 1 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी में अल्केनोइक एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपीएसी में अल्केनोइक एसिड्स कहते हैं। तो 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड कहेंगे। कॉमन सिस्टम में मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड के नाम से ही पहले एल्डिहाइड का नाम जो फॉर्मल्डिहाइड हमने लिखा था, फॉर्मल्डिहाइड का नाम फॉर्मिक एसिड से आता है, और फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिका से आता है। फॉर्मिका मीन्स रेड एंट्स। तो नॉमेनक्लेचर में डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
बेटा आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने की कोशिश करें। तीनों में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, तीनों में। अगर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दो भी हो सकते हैं लेकिन एक जरूरी है, तो एल्डिहाइड है। अगर इस कार्बन के साथ यहां भी कोई अल्काइल ग्रुप है, यानी कार्बन है, यहां भी अल्काइल ग्रुप है, तो कीटोन है। अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हाइड्रोजन साथ है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, एक एल्डिहाइड। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्काइल ग्रुप, यहां भी अल्काइल ग्रुप, कीटोन। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोनाइल और कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये वाला पार्ट डिलीट करो, CARBO भी डिलीट करो, CARBOXYL, कार्बोक्साइल ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप होता है, ये क्या होता है? कार्बोक्साइल। कार्बो फ्रॉम कार्बोनिल, ऑक्साइल फ्रॉम हाइड्रोक्साइल, इसलिए इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। सारे सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। तो इसके लिए सिर्फ अच्छी तरह समझना, फिर रिवाइज करना, खेलते खेलते इंसान खिलाड़ी बन जाता है। हाँ बेटा, अब अभी हमने देखा अगर सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ OH है, तो ये हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप है, और इन कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप्स हम करेंगे वो हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, या एसिड डेरिवेटिव्स, कुछ भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा, भैया मिल्क, हमारे पास मिल्क है, तो मिल्क से हम चीज भी बना सकते हैं, पनीर। मिल्क से हम दही भी बना सकते हैं, कर्ड, स्वीट्स वगैरह। तो मिल्क जो है ये बेसिक पेरेंट कंपाउंड है, तो यहां से जो हमें बाकी चीजें मिलती हैं वो इसकी डेरिवेटिव्स हैं, कर्ड, घी, मक्खन, पनीर। तो इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, तो डेरिवेटिव्स में भी इनकी फॉर्मूला याद करने के लिए भी आपको वैलेंसी जहन में होनी चाहिए। तो अगर मैं ये OH ग्रुप हटाऊं, अगर मैं OH ग्रुप यहां से हटाऊं, OH ग्रुप को मैं NH2 ग्रुप से रिप्लेस करूं, अभी हमने देखा NH2 ग्रुप की वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि ये पहले अमोनिया था, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, बाहर चला गया। इसी तरह हमने देखा OH ग्रुप, इसकी वैलेंसी इसकी भी 1 है।
इससे पहले हमने देखा हैलोजेंस की, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी वैलेंसी भी 1 है। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप था, यहां पर OH ग्रुप था। OH ग्रुप और NH2 ग्रुप की वैलेंसी सेम है। अगर OH ग्रुप को रिप्लेस करें, यहां हम NH2 डालें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, विच इज कॉल्ड अमाइड और एसिड अमाइड। एक तो होता है बेटा अमाइन या अमीन, इसको पढ़ते हैं। एक होता है ये वाला जो इससे पहले हमने किया, अमीन या अमाइन। इसमें और इसमें फर्क याद रखो। जो अमाइन होता है या अमीन होता है, वहां क्या होता है, इससे पहले हमने किया और के साथ NH2 डायरेक्ट, और के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ। लेकिन यहां C डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ NH2 अक्सर। और इसमें AMID, AMINE, D और N में फर्क अक्सर भूल जाता है इंसान, बच्चा भूल जाता है, तो इसलिए याद रखो। यहां R के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड है NH2, इसको अमाइन कहते हैं, अमीन कहेंगे। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 है, तो इसको अमाइड कहेंगे। तो अमाइड का जो नॉमेनक्लेचर है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सपोज अगर यहां पर अल्काइल ग्रुप CH3 है, तो बस 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, तो इसका नाम है इथेन अमाइड। इथेन अमाइड। अमाइड और अमाइन को जहन में रखो, फर्क कहां पर है। एसिड अमाइड भी एसिड का डेरिवेटिव है। इसी तरह अगर इस OH ग्रुप को हम रिप्लेस करें क्लोरीन से, ब्रोमीन से, हैलोजन से, तो यहां पर अगर मैं क्लोरीन डालूं, तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज एसिड क्लोराइड। जनरली इसको हम कहेंगे एसिड हलाइड। तो यहां पर क्लोरीन था, एसिड क्लोराइड। अब ये जो यहां पर हमने CH3 भी लिखा है, तो नॉमेनक्लेचर में इथेनॉइल, अल्केनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम आएगा। ये एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स थे। अब थोड़ा सा समय अभी बाकी है, एक मैं हिंट दूंगा। ROH अल्कोहल है, ये 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल्स अगर आपस में रिएक्ट करेंगे, we will get H2O, alcohol
प्लस अल्कोहल, एक तो वाटर, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर, और फिर क्या बचता है यहां पर ROR। अल्कोहल प्लस अल्कोहल गिव्स अस ईथर। अगर ईथर कभी भूल जाओगे, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल से वाटर निकालो तो। इसी तरह बेटा, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH प्लस ROH। अब यहां से भी वाटर निकालो, एक तो वाटर निकलेगा, बाकी क्या रहता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOR। ये भी एसिड के डेरिवेटिव्स में आता है, इसको हम कहते हैं एस्टर। ये एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, वी विल गेट एस्टर विच इज अगेन ए डेरिवेटिव ऑफ एसिड। तो लास्ट पर यहां पर दो एसिड मॉलिक्यूल्स मैं लिखूंगा, यहां से अगर हम वाटर निकालेंगे, एसिड प्लस एसिड, we will get one of the products of acids that is called acid anhydride। अब बेटा ट्रिक याद करो, अल्कोहल प्लस अल्कोहल विल गिव अस ईथर प्लस वाटर, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव अस एस्टर। क्योंकि कभी कभी ये एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स, ये जो यहां पर है ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो एसिड एनहाइड्राइड, अगर एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आप भूल जाओगे, ये एक एसिड मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एसिड मॉलिक्यूल है, ये रिवर्स में मैंने लिखा है। तो यहां से वाटर निकालो तो यू विल गेट एसिड एनहाइड्राइड। तो लास्ट पर ईथर, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड के लिए जो मैंने शॉर्टकट बोला, तो इसको भी अगर आप याद करोगे तो इससे ये तीन बड़े फंक्शनल ग्रुप्स आपके याद हो जाएंगे। अल्कोहल प्लस अल्कोहल विल गिव अस ईथर, acid plus alcohol will give us ester, acid plus acid will give us acid anhydride. That is all for today. Thank you for watching. If you have any query regarding this lecture, or if you want my help in any topics of chemistry, please message me on my WhatsApp number 9797 116855, or you could email me at this address. Thank you, my dear students. Keep watching, keep learning. Wish you all the best.